Hello students, welcome all of you in today's lecture. In previous lecture, we have seen about the information like life processes means what, which are the life processes in plants. Out of that, transportation, nutrition, respiration, photosynthesis, excretion, these are essential life processes, while reproduction, which is non-essential life process, right? In previous lecture, we have also covered information about transportation in plant. Particularly, we have seen about transportation of water, how plant absorb water and how this water transported to each and every part of the plant. These mechanism we have studied in previous lecture. Today, we are going to study the transportation of food material within the plant and excretion process in the plant. So let's start with this topic. Now translocation of food. So all of you know plant having two tissues, that is xylem and phloem, which are particularly related with the translocation of water, mineral and food. So out of that, xylem transports water and mineral while phloem transports food. So all of you know food is synthesized in the leaves of the plant. Leaves having chlorophyll, by absorbing sunlight, plant leaves prepare their food, and this food is transported from leaves to other parts of the plant. And this process of transportation of food within the plant body is called as translocation of food or translocation of material. So which material is translocated? So except amino acid, all material is translocated from leaves to other parts. So क्या होता है, ये ट्रांसलोकेट होने के बाद फूड, तो प्लांट इस फूड मटेरियल को स्टोर करता है. कहाँ कहाँ पे स्टोर करेगा? सो इन द रूट as well as in the form of fruit as well as in the form of seed. So whatever food material prepared by leaves, this all food material is not utilized by plant. Somewhat material is utilized by the plant for their metabolic activities. Then extra material plants stored in their body, where, as I told, in root, in fruits, in seeds, right? अब important क्या है, जैसे कि xylem में हमने देखा transportation of xylem is in unidirectional manner. That means from soil to the upward part of the plant, इसी डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन होता है. बट फ्लोएम के केस में ये डिफरेंट है. कैसे? सो इन केस ऑफ फ्लोएम, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इज मल्टी डायरेक्शनल. दैट मीन्स translocation of food maybe takes place in upward direction, maybe in downward direction, maybe in horizontal direction, right? मीन्स व्हाट, कि प्लांट के सिर्फ लीव्स ऐसे ही पार्ट है जहाँ पे फूड तैयार होता है और बाकी के सब जगह पे फूड तैयार नहीं होता है, जैसे कि स्टेम है, रूट्स है, ब्रांचेस है. तो ये इस ऑर्गन्स को फूड की जरूरत है. तो फ्लोएम को ये फूड रूट्स को भी पहुंचाना पड़ता है, अपाइकल पार्ट ऑफ द प्लांट को भी पहुंचाना पड़ता है, एज वेल एज जो लैटरल ब्रांचेस है वहां पे भी पहुंचाना पड़ता है. सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन फ्लोएम इज हैविंग मल्टी डायरेक्शनल फ्लो, राइट? एंड जाइलम में क्या है? यूनिडायरेक्शनल फ्लो. तो ये बेसिक डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है. अब जब ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड होता है विद इन द प्लांट बॉडी, तो ये पैसिव मैकेनिज्म से नहीं होता है, इट रिक्वायर्स एनर्जी, राइट? सो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड is a physical process but it requires energy in the form of ATP. फिर ये ATP कहाँ आता है, कैसे आता है प्लांट बॉडी में? तो ऑब्वियसली प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं, वही रेस्पिरेशन प्रोसेस से ATP जो तैयार होगा, that ATP is utilized by the phloem for the translocation of food from leaves to the other parts of the plant, right? Now एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है ट्रांसलोकेशन का, इसके बारे में हम देखेंगे. तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि प्लांट्स में जब फूड का ट्रांसलोकेशन होता है तो बिटवीन द 2 पॉइंट्स होता है. वन पॉइंट इज सोर्स एंड अनदर पॉइंट इज सिंक. अब व्हाट इज मीन बाय सोर्स? द सोर्स इज अ पॉइंट वेयर फूड इज प्रिपेयर्ड. सो इन केस ऑफ प्लांट वेयर फूड इज प्रिपेयर्ड, तो ऑब्वियसली एट लीव्स, सो लीव्स बिकम सोर्स. एंड अदर पार्ट्स which are unable to prepare their own food but they need food for their growth, so these parts are called as sink. So sink क्या रहेंगे प्लांट में? रूट, स्टेम, ब्रांचेस, these are the sinks. ओके, सो हमेशा
ट्रांसलोकेशन फ्लोएम थ्रू जब होता है तो बिटवीन सोर्स टू सिंक होता है। अब हमेशा सोर्स लीफी रहेंगे क्या? तो ऐसी बात नहीं है। तो जैसे ही समर सीजन में प्लांट्स अपने लीव्स शेड कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं डिफोलिएशन, तो एट दैट टाइम बिफोर शेडिंग द लीव्स प्लांट अपना फूड रूट्स में, स्टेम में स्टोर करके रखता है। एंड जैसे ही रेनी सीजन का ऑनसेट होगा तो यही मटेरियल जो कि ऑलरेडी स्टोर है रूट एंड स्टेम में, उसका यूटिलाइजेशन करके प्लांट अगेन अपने लीव्स फॉर्म करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? तो रेनी सीजन में रूट स्टेम एक्ट एज ए सोर्स, एंड जहाँ पे लीव्स तैयार होने वाले हैं, मतलब बर्ड तैयार होने वाली है, दैट पार्ट एक्ट एज ए सिंक। सो हमेशा प्लांट में सोर्स एंड सिंक ये जो पॉइंट है वो चेंज होते हैं, बट एक पॉइंट क्लियर है कि फ्लोएम से जब ट्रांसलोकेशन होगा तो बिटवीन द सोर्स एंड सिंक ही होगा। करेक्ट। अब इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे। तो जब प्लांट फूड जहाँ पे तैयार हुआ है, दैट इज लीव्स, वहां से जब ट्रांसलोकेशन की शुरुआत करते हैं तो वो फूड को पहले कन्वर्ट करते हैं। दैट मीन्स प्लांट फूड को सुक्रोज फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करते हैं, राइट। मतलब प्लांट जब फूड तैयार करेगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में तो वो ग्लूकोज फॉर्म में तैयार करता है। Before transportation, this glucose is converted into a simple sugar that is called as sucrose, and then this sucrose is added into the phloem. Okay, अब होता क्या है? फ्लोएम में जैसे ही ये फूड ऐड होगा तो वहाँ पे जिस पॉइंट पे ये फूड ऐड हुआ है वहाँ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। ओके, और जो पार्ट जिसको फूड की ज़रूरत है उस पार्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। मतलब प्लांट में दो पॉइंट पे हाई कॉन्सेंट्रेशन एंड लो कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट तैयार होता है, और हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ट्रांसलोकेशन होगा। तो सेम वे जो फ्लोएम का एंड लीव्स की तरफ है, वहां पे शुगर ऐड होने की वजह से, दैट मीन सुक्रोज ऐड होने की वजह से वहां का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ। सेम टाइम जो अपोजिट पार्ट है जिसको हम कहेंगे सिंक, जिसको फूड की जरूरत है, वहां पे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है। किसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है? तो वाटर का है, सिंपली वाटर का। तो वो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा और एक सुटेबल कंडीशन तैयार होगी ट्रांसलोकेशन के लिए, दैट इज हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अब इन दिस वे ये ट्रांसलोकेशन फूड का होता है। अब ये कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस तैयार होने की वजह से होता क्या है एक्चुअली? तो जो वेरियस सेल्स है वो उन सेल्स में वाटर एंट्री करता है। मतलब जिस सेल में हाई कॉन्सेंट्रेशन है उस सेल से लो कॉन्सेंट्रेशन वाली सेल की तरफ वाटर की मूवमेंट होती है, मतलब इस फूड की मूवमेंट होती है, वी कैन से। तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस से ये होता है। सो डिफ्यूजन मीन्स व्हाट? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अब जैसे ही ये सेल टू सेल ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का, तो यहाँ पे जिस सेल में फूड मटेरियल एंटर हुआ है उस सेल वॉल के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है। दैट मीन्स वो प्रेशर इंक्रीज होता है। जैसे कि सेल में कुछ ना कुछ ऐड अगर हुआ तो ऑब्वियसली सेल का प्रेशर इंक्रीज होने वाला है। तो वी कैन से कि प्रेशर ऑन द सेल वॉल इंक्रीज होता है। कैसे? फिर से आप एक बार समझ के लीजिए कि सेल, प्लांट सेल हैविंग सेल वॉल, मैंने क्या बताया कि फ्लोएम थ्रू मटेरियल जब ट्रांसलोकेट होता है तो सेल टू सेल ट्रांसलोकेट होता है। मीन्स व्हाट? सोर्स से लेके सिंक्स तक 100 सेल्स है। तो वन बाय वन एक एक सेल ये फूड मटेरियल पास करके फाइनली सिंक तक पहुंचाने वाली है। तो एक्चुअली इन सेल्स में क्या चेंजेस होते हैं ये हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट सपोज फर्स्ट नंबर की सेल है, उसके बाद सेकेंड नंबर की सेल है। तो जब फर्स्ट नंबर की सेल में फूड एंट्री करता है, दैट मीन्स शुगर एंट्री करती है, तो एट दैट टाइम फर्स्ट नंबर के सेल में इंटरनल कॉन्सेंट्रेशन, इंटरनल सॉल्यूशन बढ़ता है। उसकी वजह से वो सेल वॉल के ऊपर प्रेशर बढ़ाता है। इसकी वजह से क्या होगा? एक नंबर की जो सेल है वो टर्जिड बनेगी, और जो दो नंबर की सेल है वो एज कंपेयर टू फर्स्ट नंबर ऑफ सेल वो लेस टर्जिड रहेगी। अब होता क्या है? एक नंबर के सेल में रहा हाई कॉन्सेंट्रेशन, दो नंबर के सेल में है लो कॉन्सेंट्रेशन, तो ऑब्वियसली फ्रॉम हाई टू लो मूवमेंट होगी और फर्स्ट नंबर की सेल से सेकेंड नंबर की सेल में फूड ट्रांसलोकेट होगा। सो ऐसे ही सेकेंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, अल्टरनेटली सेल टर्जिड फ्लैसिड बनते जाते हैं
और फूड आगे ट्रांसलोकेट किया जाता है। क्लियर? सो दिस इज द मैकेनिज्म। अब होता क्या है, जब ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड फ्लोएम से होता है तब ये ट्रांसपिरेशन पुल मैकेनिज्म से होता है क्या, ये हमें जानना है। जैसे कि हमने वाटर के बारे में देखा, जब वाटर ट्रांसपोर्ट होता है टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट तो वहां पे वाटर पुल किया जाता है, एक ट्रांसपिरेशन पुल मैकेनिज्म हमने देखा। बट फ्लोएम में ऐसी कुछ बात है क्या, तो नहीं। सो इन केस ऑफ फ्लोएम फूड मटेरियल को पुश किया जाता है। अब कैसे पुश किया जाएगा, देखिए एक सेल टू अनदर सेल, देन अनदर सेल टू थर्ड फोर्थ, इस तरह से सेल टू सेल मटेरियल को पास किया जाता है, जिसको हम कहेंगे फूड मटेरियल पुश किया जाता है। ओके, अब ये जो मटेरियल सिंक तक पुश होता है इसमें जाइलम भी फ्लोएम को हेल्प करती है। एक्चुअली जाइलम एंड फ्लोएम विच आर सिचुएटेड नियर टू ईच अदर, तो ये दोनों टिश्यूज एक दूसरे को हेल्प करते हैं। और जहाँ पे फूड मटेरियल फ्लोएम ने एंट्री किया है जिसको हम कहते हैं लोडिंग, तो वहाँ पे जाइलम अपना वाटर फ्लोएम को पास करती है। इसकी वजह से होता क्या है, फ्लोएम में प्रेशर इंक्रीज होता है और फूड मटेरियल पुश करने में ये वाटर हेल्प करता है सेल को। जहाँ पे सिंक है, मतलब ये फूड मटेरियल पुश होते होते सिंक तक पहुंच गया। सिंक मतलब कोई भी एक ग्रोइंग रीजन है, वो उस फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करेगा। एट दैट पॉइंट जो वाटर जाइलम ने लोडिंग के समय फ्लोएम में ऐड किया था, वो वाटर यहाँ पे मतलब सिंक की तरफ क्या होता है, फिर से जाइलम में एंट्री करता है। मतलब जैसे ही फ्लोएम का फूड अनलोड हुआ इनटू द ग्रोइंग रीजन, जाइलम अपना वाटर फिर से रिटेन करती है। इस तरह से अल्टरनेटली वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम टू फ्लोएम भी होता है। किसके लिए होता है, टू हेल्प द फ्लोएम टू ट्रांसलोकेट द फूड। क्लियर? सो इन दिस वे ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल प्लांट में होता है। अब जब फ्लावरिंग सीजन आता है प्लांट में, जैसे मैंने आपको बताया कि रेनी सीजन में एक्चुअली ये फ्लावरिंग या लीव्स फॉर्मेशन होता है प्लांट में, तो ऐसे समय में फ्लोएम का ट्रांसलोकेशन कहाँ से कहाँ होने वाला है, तो ऑब्वियसली फ्रॉम रूट और स्टेम टू द बड रीजन, जहाँ पे फ्लावर बड आने वाली है, जहाँ पे लिप बड तैयार होने वाली है, इस रीजन तक ये फूड ट्रांसलोकेट होता है। तो यहाँ पे भी सेम मैकेनिज्म काम करता है। ड्यूरिंग रेनी सीजन जाइलम अपना वाटर फ्लोएम में पास करती है और फूड मटेरियल को पुश करके जो ग्रोइंग पार्ट है वहां तक लेके जाते हैं। सो दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल, राइट? सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस ऑफ द प्लांट, दैट इज एक्सक्रीशन। क्लियर? अगर आपको कोई डाउट है तो आप डाउट्स कमेंट्स में डाल दीजिए, आपके डाउट्स क्लियर करवा के दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।